Hello, dear students. This is Dr. Saurabh Jain at Study IAS. Now, we will be discussing about the prelims paper 2024 and specifically the environment and science text section of this particular paper. Especially, if we look up to the environment and science text section, the number of questions have been almost same that we have seen. The higher number of questions have been there in environment and science and technology, although respective to the other years, the type of questions have been more direct, they have been more factual, and particularly more easier compared to the other years. Looking on to the type of questions that we can drain out of over here, the first one, this with reference to the perfluoroalkyls and the perfluoroalkyl substances, which is PFAS. This particular topic has been there in current affairs also, and it has been discussed. PFAS are those type of substances which are plastic type of substances which are present in the food grade wrapping materials. Also, they are present with certain other packaging materials also. So PFAS is widespread found in drinking water, food and food packaging material. Yes, they are, because they are these substances, they are being packed over here, and this particular topic or this particular option was almost correct. PFAS are not degraded easily. Yes, they are not. They are partially non-degradable substances, or they are those type of substances which will require much amount of the time to degrade, and they remain persistent in the environment, and the persistent exposure of these, it can lead up to bioaccumulation, the accumulation of these substances into the living beings, or with reference to other things, if we say, into the organisms. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का पार्ट भी सही हो जाता है, इसलिए फॉर दिस क्वेश्चन 1, 2 and 3 was the correct answer also. If you look up to the second question which is being asked, this is more of a factual question, but this has been a debatable question also, or we can say this is more current affairs or oriented question. The parasitoid species which has been asked over here in this question paper, the parasitoids are a kind of partial parasites, we can say, or they are preliminary parasites, or they are before, we can say, in the lower organisms या insects में या ऐसे organisms में parasite से पहले parasitoid बनता है. Parasitoid एक ऐसा species है जो किसी एक particular host organism के साथ ectoparasitically or endoparasitical inside their body or outside their body, they can remain attached. If they are attached to a particular host organism inside their body, then they will kill the organism, and then they will have their life cycle. If they are attached outside the body, then they use the host for their growth and development. So it is a kind of a parasitoid, and parasitoid is an evolutionary species. It evolves into various other species also. ये कई बार अलग अलग species या अलग अलग life cycle के phases होते हैं parasitoid. पैरासाइट नहीं है क्योंकि पैरासाइट एक डेवलप्ड मैकेनिज्म है, इसलिए टर्म पैरासाइट नहीं है. पैरासाइटॉइड इसलिए है क्योंकि ये पूरे लाइफ साइकिल में इवॉल्व होता जाता है. Such type of these species, they are seen in beetles, centipedes. Centipedes are those we can say thread-like organisms, arthropods, flies, wasp, but they are not found in termites. Termites do not have the parasitoid type of life cycle or parasitoid type of evolution species. So for this, only 4 was the most probable answer, is the correct answer, which is C. Next question, if you look up to, is a question coming from P family. This is also a particular question which is again a hardcore biology line question which is being asked over here. P family. P family, mostly when we say biology, Fabaceae is the basic family. P family जब भी हम बोलेंगे तो लेग्यूमिनस प्लांट्स या लेग्यूम्स यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं. अब लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी कई तरीके के लेग्यूमिनस है. ऑर्किड्स टाइप ऑफ लेग्यूम्स भी होते हैं, लेंटिल टाइप्स ऑफ लेग्यूम्स भी होते हैं, और फिर कॉटिलेडन लेग्यूम्स भी होते हैं. अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिबेट है, बहुत सारे लोगों को डाउट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया भी कि इसमें सबसे ज्यादा डाउट हुआ. इजी क्वेश्चन था लेकिन डाउट हुआ. अब इजी क्वेश्चन होने के बाद भी डाउट किस में था? हॉर्स ग्राम, या हिंदी में हम बोलें तो ये
और ग्राम या कुल्थी जिसको हमने बोल दिया, दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स जो फेबेसी में बिलोंग करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें डाउट किया कि सिर्फ इसका आंसर 1 और 3 ही होना चाहिए, लेकिन हॉर्स ग्राम भी फेबेसी में ही है और ये ऑल 3 इसका आंसर होना चाहिए, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन में अब ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास होंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास हैं तो यहाँ पे नॉलेज ज्यादा काम करता है। कई बार यहाँ पे सिलेक्टिव एलिमिनेशन, और सिलेक्टिव एलिमिनेशन के तो चांस भी यूपीएससी ने नहीं छोड़ा इस बार इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चंस में डाउट होता है, ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस हमको इजी दिखते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक स्टेटमेंट आया है जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पूछता है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, या जिसे हम कहते हैं फ्रूट ईटिंग बैट्स। फ्लाइंग फॉक्स एक जनरल टर्म इनको कहा जाता है। ये एक प्रकार के चमगादड़ हैं या बैट्स हैं जो फल खाते हैं। अब क्योंकि फल खाते हैं तो कई जगह पर, खासतौर पर साउथ इंडिया में कई जगह पर फलों की फसलों को नष्ट भी करते हैं, खराब भी करते हैं। तो ये कई जगह पर, कई स्टेट्स में एक वर्मिन स्पीशी डिक्लेयर हो गए हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू। और वर्मिन स्पीशी का मतलब होता है दैट इफ दे आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ लॉस एंड डैमेज टू द ह्यूमन प्रॉपर्टी और इट्स प्रोडक्ट्स, देन दे आर बीन लाइसेंस्ड टू बी किल्ड बाय से the state forest department or the authorized person by the state forest departments, right? तो वर्मिन स्पीशी हैज बीन डिक्लेयर्ड, इट इज करेक्ट। ये अगेन एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलरेडी करंट अफेयर्स में इंफॉर्मेशन थी। अब सेकंड यहां पे पूछता है फ्लाइंग फॉक्सेस फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, इज नॉट करेक्ट, इट इज इन फैक्ट wrong because these are fruit eating species, they are not carnivorous species. So this statement is not correct. This statement is correct, which is the flying foxes have been declared as vermin. So answer must be C for this question. Next, if we understand, then this is again a factual question which is being asked from biology, linked to biodiversity, or again linked to, we can say, current affairs. These type of species, they have been there in current affairs this year, right? अब इस बार के current affairs खासतौर पे बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट और साइंस टेक के करंट अफेयर्स को देखेंगे, और पर्टिकुलरली पहले ईयर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे और इस साल के क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो ये थोड़े से इजी हो गए क्योंकि यहां पे डायरेक्टेड हो गए एक पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये थोड़े से टफ भी है। टफ इसलिए है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने फैक्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा था, असिमुलेट नहीं किया था, तो फिर ये करंट अफेयर्स आपकी किसी यूटिलिटी का नहीं है और इस बार ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस जाने वाले थे। मुझे आशा है कि बहुत सारे बच्चे इसमें से निकल गए होंगे और ये आसान सा क्वेश्चन है। सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर्स। पॉन्ड स्केटर्स स्पेसिफिकली अभी कुछ दिनों पहले भी कुछ न्यूज में थे। These are all species of insects. They have been taken up as the insect species and they are more importantly the insect species also, right? अब इसमें कुछ बच्चों को डाउट रहा है, रेप्टाइल्स लगा के आ गए, कुछ फ्रॉग हॉपर सोचा कि हॉपिंग फ्रॉग होगा या कुछ। तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको या तो पता है या तो नहीं पता है। अगर आपको पता है तो ही ये क्वेश्चन सही होने वाला है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में इजी होने के साथ साथ ये क्वेश्चन एक हनी ट्रैप भी हो जाते हैं। हनी ट्रैप क्यों है? क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे बन जाएगा, ये आसान है, मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन वहीं उसी तरफ अगर आप इसमें रेप्टाइल लगा के आ गए होते या हो गए तो ये आपके लिए ट्रैप बन गया है, ये मार्किंग को घटा देगा। नेक्स्ट अगर हम समझें तो एक क्वेश्चन इस बार च्यूइंग गम्स पे पूछा गया है। च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बाजार में मिलने वाली अनेक च्यूइंग गम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं। अनेक च्यूइंग गमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। Many chewing gums contain plastic as the gum base. Yes, it is correct because the new report from WHO also, from United Nations Environment Program also, and other reports, they ascertain कि 95% च्यूइंग गम्स जो हम मार्केट में देखते हैं उसमें पॉलीविनाइल एसीटेट नाम का एक सब्सटेंस है,
जो स्लो डिग्रेडिंग है। ऑल्दो ये बायोडिग्रेडेबल होता है लेकिन स्लो डिग्रेडिंग है, इसलिए काफी समय तक एनवायरमेंट में रह जाता है और एक प्लास्टिक का फॉर्म ही है। तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। लगभग 22,000 tons of the waste is being created every year because of these chewing gums and such type of the substances। और वही इसका गम बेस है, क्योंकि गम बेस कंज्यूम नहीं होता, गम बेस हम एक्सपेल आउट कर देते हैं, हम थूक देते हैं। तो यहां पर ये पॉलीविनाइल एसीटेट अपने आप में प्लास्टिक और प्लास्टिक से रिलेटेड सब्सटेंसेस ये पोल्यूशन के सोर्स बन जाते हैं। इसलिए दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को सही तरीके से समझाता है। सो आंसर मस्ट बी ए फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट, इफ वी अंडरस्टैंड, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द डोमेन या हम बोले आउट ऑफ द लीग रहा है, क्योंकि अभी तक स्पीशीज बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती थी बायोडाइवर्सिटी में, लेकिन ये स्पीशीज बेस्ड क्वेश्चंस इंडियन ओरिजिन पर रेस्पेक्टिव रहते थे या इंडियन ओरिजिन पर ही रह जाते थे या इंडियन स्पीशीज को पूछ लेता था। इस बार कुछ स्पीशीज ग्लोबल लेवल पे भी पूछ लिया है। जैसे इंद्री एक स्पीशी है, लमूर स्पीशी है। लेमूर्स बंदर के जैसे या बंदर से मिलते जुलते कुछ स्पीशीज होते हैं। लेमूर्स को ब्राजील में बोला कि ये क्या ये यहां पर पाए जाते हैं। इनफैक्ट लेमूर्स मेडागास्कर में पाए जाते हैं, ऐसे लेमूर्स इंद्री, इसलिए ये सही नहीं था। एल्क एक तरीके की हिरण की स्पीशी है, एंटेलोप स्पीशी है जिसके बड़े बड़े हॉर्न्स हैं। इंडिया में भी एल्क्स होते हैं। इनफैक्ट एल्क अगर हम देखेंगे तो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट भी नहीं, ईस्ट एशिया और सेंट्रल अमेरिका में होते हैं। इसलिए यहां पे एल्क्स इंडोनेशिया की तरफ तो जाते भी नहीं, इसलिए वहां पे नेचुरल हैबिटेट में नहीं होगा। बोनोबो ये ऐसी स्पीशीज हैं जो मोस्टली कॉन्गो बेसिन में होती हैं, और अगर हम इसको अच्छे से समझें तो मेडागास्कर काफी नीचे कॉन्गो बेसिन से, जहां पर ये स्पीशीज नहीं जाती हैं। इसलिए ये तीनों स्पीशी अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है और इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके नॉलेज को कई बार चेक भी कर लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो थोड़े से हाईलाइट भी हो जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो अगले साल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए और नए तरीके से पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। ट्रेडिशनल सोर्सेस से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज कम होती है। बहुत कम स्टूडेंट्स इस तरीके के सोर्सेस को कई बार लेते हैं, क्योंकि हम जनरली समझते हैं बायोडाइवर्सिटी इंडियन पूछेगा, हम स्पीशीज को पढ़ लेते हैं, या करंट में कोई स्पीशीज रही है उनको पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ इंडिया स्पीशीज को भी अगर करंट में होती है तो हम उतना एम्फेसिस देके नहीं पढ़ते, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में हमें अगर डाउट होता है तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें नहीं सॉल्व करना चाहिए या इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, it is one of the agencies of United Nations? No, it is not one of the agencies of United Nations. In fact, ये एक kind of independent agency है। World Toilet Summit, World Toilet Day और World Toilet College are the initiatives of the organization. Yes, they are the initiatives of this organization. Main focus is to function the grant funds to least developed country. Rather, it is more relative to awareness in the least developed country towards sanitation. Least developed countries में sanitation हो, टॉयलेट्स बने या इस तरीके के अवेयरनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। फंड से इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 2 ओनली। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशंस या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ते हैं, एनवायरमेंट, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन के ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ते हैं, और ये करंट अफेयर्स में रहा भी है। अब ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे करंट अफेयर्स, एक सिंपल करंट अफेयर्स पूछा जाता है यूपीएससी में, और पूछा भी गया है पहले, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को आसानी से हम टैकल कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए फ्रेमवर्क क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये भी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा है, और क्योंकि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम भारत में चल रहा है तो चीता से संबंधित एक सवाल आएगा, या चीता से रिलेटेड या इन बिग कैट से रिलेटेड एक सवाल आएगा, ये तो हम सबको लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा और कंपैरेटिव वे में चले गए, जहां पर उन्होंने पूछा है
लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ये तो कैरेक्टरिस्टिक ही है, लायंस का ऑल अराउंड ब्रीडिंग सीजन रहता है, ऑल ईयर ब्रीडिंग सीजन रहता है, एंड दे कैन ब्रीड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इन एन ईयर ऑल्सो विद मेनी नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो। ये इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है लायंस का, ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा, अनलाइक मोस्ट बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर। यस, ये बड़े जितनी भी बिल्लियां हैं, चाहे वो लायंस हो, लेपर्ड्स हो, लेपर्ड्स की भी कई वैरायटी हैं, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड्स, इस तरीके के जो लेपर्ड्स हैं, या टाइगर हो, बाघ, इन सब में, या चीता ही हो, इन सब बिग कैट्स में दो बिग कैट्स होती हैं जो रोर नहीं करती हैं। चीता तो रोर ही नहीं करता है, और क्लाउडेड लेपर्ड भी एक ऐसा लेपर्ड है जो रोर नहीं करता है, जैसे और ये बिग कैट्स करते हैं। तो चीता और क्लाउडेड लेपर्ड्स, ये हम जनरली समझते हैं कि ये दो बेसिक एग्जांपल्स हैं इसके नॉट रोरिंग के। तो चीता यहां पर एक, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट पूछता है, मेल अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। नर सिंह भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, बल्कि लेपर्ड और लायंस दोनों अपने सेंट से अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। टेरिटोरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इनकी क्रॉस टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होती है। एक टेरिटरी से दूसरा आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते हैं। इसलिए ये इनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। लायंस, लेपर्ड्स और टाइगर्स हमेशा अपनी टेरिटरी को मार्क करके चलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2 स्पेसिफिकली। अगला क्वेश्चन इसमें इससे रिलेट करके पूछा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, नेट जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस का भी क्वेश्चन है। जो पूछा है 100 मिलियन फार्मर इनिशिएटिव का। 100 मिलियन फार्मर इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव में 100 मिलियन फार्मर इनिशिएटिव में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कि जब पूरा विश्व नेट जीरो की तरफ जा रहा है, नेट जीरो का मतलब है कि हम जितना कार्बन बनाएं उतना कार्बन एब्जॉर्ब करें, और इसका एक टारगेट बनाया गया दैट बाय 2050 वी मस्ट बी एट नेट जीरो। 2050 से 2060 के बीच में हमको नेट जीरो कर लेना पूरे विश्व को। भारत भी इसमें अपना योगदान कर रहा है। 2070 हमने बोला कि हम नेट जीरो चले जाएंगे, कुछ कंट्रीज बोल रहे हैं कि हम 2050 में चले जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं 2045 में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज कर रहे हैं। लेकिन जब नेट जीरो में आप चले जाएंगे, और बहुत सारे देशों में जो कृषि प्रधान देश हैं, जहां पर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, उन सारे देशों में आप टेक्नोलॉजी को कैसे इनिशिएट करोगे, कैसे फार्मर्स को एक बेनिफिट दोगे, या कैसे फार्मर्स के साथ एसोसिएट होगे कि वो नेट जीरो टेक्नोलॉजीज को अपना पाए। क्योंकि अभी फार्मर्स और फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है एनवायरमेंट में जहां पर सबसे ज्यादा एमिशन इंटेंसिव बना हुआ है, खासतौर पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम बात करेंगे तो ये एमिशन इंटेंसिव बना हुआ है। एमिशन इंटेंसिव का मतलब क्यों है? हम मशीनरीज ऐसी यूज करते हैं, हम इस तरीके की क्रॉपिंग करते हैं, हम इस तरीके की मेथड्स अपनाते हैं जहां पर एमिशन बहुत ज्यादा होता है। भारत जैसे देशों में देखो स्टबल बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप कैसे कह सकते हो ऐसे देश जहां पर स्टबल बर्निंग या पाली जलाना इतना ज्यादा होता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र ही एमिशन से ढक जाता है, पूरे के पूरे क्षेत्र में स्मॉग आ जाती है। ऐसे कंट्रीज में फार्मर्स को अगर आप कह दोगे कि हम तो नेट जीरो पे आ गए हैं, हम एमिशन नहीं करते हैं, तब फार्मर्स कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? तो ऐसे फार्मर्स या ऐसी कंट्रीज में फार्मर्स को टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स देने के लिए या उसको नेट जीरो के लिए अपने आप को अवेलेबल और अपने आप को पूरी तरीके से अपीलिंग बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। इसलिए ये इनिशिएटिव, इसका आंसर होना चाहिए ए। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड एम्स टू इंक्रीज द फार्मर रेजिलियंस। यहां पर पुनरुत्थानशीलता हो सके नेट जीरो के समय पर, नेट शून्यता के समय पर किसानों की, उसके लिए ये 100 मिलियन फार्मर इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लिया था। ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में ये पढ़ा भी गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज या वितरित ऊर्जा संसाधन। वितरित ऊर्जा संसाधन हमें अपनी वर्ड से ही समझ में आता है।
मीनिंग सही समझ में आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब यह है कि अभी तक जब हम एनर्जी रिसोर्स या एनर्जी ऊर्जा बनाने वाले रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो सब एक जगह पर केंद्रित हैं, चाहे वो या एक जगह पर ही पूरी ऊर्जा को केंद्रित हम करके रखना चाहते हैं। जैसे हम कोल बेस्ड पावर की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें या अन्य सोर्सेस की बात करें, तो इन सब से पूरा का पूरा पावर एक जगह आता है जहां से फिर ग्रिडिंग होकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेटर का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे सोर्स जो अलग अलग जगहों पर अपना खुद का पावर जनरेट कर सकेंगे और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ा सकें। सो दैट जो हमारे बड़े पावर जनरेटर्स हैं, कोल बेस्ड पावर जनरेटर है या और जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाले पावर जनरेटर्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हम कम कर सकें और इंडिविजुअल पावर जनरेशन को हम बढ़ा सकें, ताकि इंडिविजुअल पावर जनरेशन में दो चीजें होंगी, या डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जनरेशन में दो चीजें होंगी। ये आसानी से किया जा सकता है और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन भी इजीली किया जा सकता है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज सारे छोटे एनर्जी जनरेशन या ग्रीन एनर्जी में यूज होने वाले छोटे छोटे पावर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि बैटरी स्टोरेज हर कोई यूज कर सकता है, हर जगह पर हो सकता है। आपके घर में भी इन्वर्टर यूज हो रहा है या सोलर पावर सेल्स यूज हो रहे हैं जिसके साथ बैटरी स्टोरेज यूज हो रही है। बैटरी ड्रिवन कार आप यूज कर रहे हो, बैटरी ड्रिवन मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो। बायोमास जनरेटर, जहां पर आप बायोगैस प्लांट लगा सकते हो और अपने घर में ही गैस बना सकते हो, बाद में वही ईंधन के रूप में उपयोग हो सकता है या बाद में वही बिजली बनाने में काम आ सकता है। फ्यूल सेल्स, ये भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जहां पर कार फ्यूल सेल बेस्ड हो जाएंगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड हो जाएंगी। आप अपनी एनर्जी खुद बनाओगे, आप डिपेंडेंसी नहीं रखोगे सेंट्रल ग्रिड पर। या रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट, जो कि हर घर में लगाया जाएगा और एक एनर्जी इंडिपेंडेंस हर घर के लिए कर सकता है। तो ये सभी चारों सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज के अच्छे एग्जाम्पल हैं, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए था ऑल फोर, डी। अगला यदि हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिक रिलेशनशिप विद इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व्ड विद इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। ठीक है, हिंदी में समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो वृक्ष के साथ सहविकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित करता है। ये बड़े इजी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि फिग जब हम पढ़ते हैं, खास तौर पर जब बायोडायवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया जब हम पढ़ते हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में फिग, अंजीर, ये मूल रूप से देखा जाता है। और फिग के साथ एक छोटा सा कीड़ा है जिसको हम फिग वैस्प बोलते हैं। छोटा सा कीट है, ये इसके साथ ही उगता है, इसी पर ही रहता है, इसी के थ्रू इसका पूरा जीवन चक्र चलता है और इसके जीवन चक्र के कारण से ही, इसकी पूरी लाइफ साइकिल के कारण से ही ये फिग पॉलिनेट होता है या परागित होता है। इसलिए ये भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक नोन क्वेश्चन है, बल्कि बायोलॉजी में या जब बेसिक बायोलॉजी हम पढ़ते हैं तो उसका एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, फिग और फिग वैस्प। तो अगर आपने या बच्चों ने इस सवाल को या इस टॉपिक को ट्रेडिशनली पढ़ा होगा, थ्योरी बेस होकर के पढ़ा होगा, तो ये आसानी से मिला होगा बायोडायवर्सिटी के एग्जाम्पल्स में। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर हमें थोड़ा सा डाउटफुल रख के सोचना चाहिए कि इसके साथ हमें क्या करना है। अगला अगर हम देखें तो कंसीडर फॉलोइंग बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, which of them are poisonous? तो बटरफ्लाइज, जायंट swallow tail बटरफ्लाइज ऐसी होती हैं, अफ्रीका में पाई जाती हैं, नीले रंग की तितलियां हैं, ये पॉइजनस टू ह्यूमंस मानी गई हैं। बहुत सारी फिशेस हैं जैसे मोरे, ईल वगैरह, ईल है और भी बहुत सारी फिशेस हैं जो कि ह्यूमंस के लिए पॉइजनस होती हैं। फ्रॉग्स, कुछ ऐसे फ्रॉग वैरायटीज भी हैं जिसमें पूरा ही पॉइजन, टोड्स या पॉइजन फ्रॉग टेल्स भी बोला जाता है जिनको, ऐसे फ्रॉग्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। अब ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी या बायोलॉजी से रिलेट क्वेश्चन करता है ये। और तितली, मत्स्य, मंडूक, मेंढक, ये सभी जातियां विषाक्त होती हैं या ये सभी पॉइजनस वैरायटीज हैं। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ये भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पर यदि आपको पता है तो आप लगा सकते थे,
अगर इसके विषय में नहीं पता था तो डाउटफुल होकर के ये क्वेश्चन भी आपको नेगेटिव मार्किंग दे सकता है आसानी से। तो बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस के विषय में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब इस तरीके के क्वेश्चन है जो ज्यादा बेसिक वाले क्वेश्चन है, यदि आपको इस संदर्भ में पता है, आप जानते हैं तो लगाइए, नहीं तो अधिकतर बच्चों ने इसमें फिश और फ्रॉग तो लगाया है लेकिन बटरफ्लाई पे डाउट करके ओनली 2 लगा के आ गए हैं, जबकि इसका आंसर ऑल 3 होना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ये आसान दिखते हैं लेकिन कई बार नेगेटिव मार्किंग भी दे देते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत या उसमें पाई जाने वाली देशीय वृक्ष के विषय में अथवा नेटिव स्पीशीज के विषय में। नेटिव जो भारत में ही उगे, भारत में ही पाए जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। कैश्यू अगर आप देखोगे तो कैश्यू भारत का नहीं है, इनफैक्ट ये ब्राजील से आया हुआ है। पपाया यदि देखोगे, पपीता, तो ये सेंट्रल अमेरिका से आया है। ब्राजील और वहां के क्षेत्रों से आया हुआ है मूलतः कैश्यू। रेड सैंडर्स, लाल चंदन, रक्त चंदन, ये भारत में ही उगा, भारत में ही पाया जाता है। खासतौर पर आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ये पाया जाता है और बहुत नोन भी रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये काफी समय से करंट अफेयर्स में भी रहा है। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता था कैश्यू को लेकर के, क्योंकि कैश्यू भी साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, लेकिन मूलतः ये साउथ ईस्ट एशिया की वैरायटी है ही नहीं। मूलतः कैश्यू साउथ अमेरिका से आता है, इसलिए ओनली 1 इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ये अगस्त से लेकर सितंबर 2023 के बीच की कुछ करंट अफेयर्स की रिपोर्ट थी जिसमें इसके विषय में चर्चा की गई थी। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर, इसके विषय में अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे जनरेटर्स होते हैं या छोटे छोटे पावर के सोर्स होते हैं। इनमें मूलतया एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस रॉड जैसे स्ट्रक्चर में एक जगह पर रेडियो आइसोटोप को भर दिया जाता है। अब इस रेडियो आइसोटोप, खासतौर पर इसमें प्लूटोनियम यूज होता है 238, स्ट्रॉन्शियम भी यूज हो सकता है और भी विभिन्न प्रकार के रेडियो आइसोटोप यूज हो सकते हैं। इसमें एक जगह पर रेडियो आइसोटोप रख दिया जाता है जिसके विकिरणों के कारण से, रेडिएशन के कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है और दूसरी तरफ खाली जगह या एक थर्मोकपल लगा दिया जाता है। थर्मोकपल का मतलब है कि एक ठंडी जगह बना दी जाए, यहां से विकिरण यहां ना जाए, दूसरी जगह पर ऊष्मा ना जाए, अथवा हीट दूसरी जगह पे ना जाए, दूसरे ओर पर ना जाए, हीट यहीं पर रह जाए। तो हीट, यहां पर हीट है, यहां पर हीट नहीं है, इससे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यह पोटेंशियल जनरेट होता है सीबैक इफेक्ट के कारण से। सीबैक इफेक्ट फिजिक्स में एक बड़ा वेल नोन इफेक्ट है। इस सीबैक इफेक्ट के कारण से हीट और नॉन हीट एरिया के बीच में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, विद्युत जनरेट होती है, और जिससे विद्युत उपयोग किए जा सकते हैं। छोटे जनरेटर्स होते हैं, छोटे छोटे काम, लाइट जला ली, कंप्यूटर इत्यादि चला लिया, इन सबों के लिए ये उपयोग किया जाता है। तो ये एक मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स होते हैं? नहीं, ये सीबैक इफेक्ट पर आधारित एक प्रकार के जनरेटर्स होते हैं। यूज्ड फॉर पावरिंग दी ऑनबोर्ड सिस्टम्स फॉर स्पेसक्राफ्ट, यस, ये जरूरी है। ये कई जगह पर, उन जगहों पर उपयोग किए जा सकते हैं जहां पर अन्य स्रोत उपयोग नहीं आते हैं, या ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की अगर हमको पावर देना है, जैसे सैटेलाइट्स में, स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल सेल हम भेजें तो फ्यूल सेल की भी एक लिमिटेशन है, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएंगे उसका पावर सोर्स या अगर हम बैटरी भेजें तो बैटरी कुछ देर में डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये ऐसे सोर्स होते हैं जो छोटे छोटी जगहों पर उपयोग किए जा सकते हैं, लाइटिंग के लिए अथवा छोटे छोटे फ्लैशेस के लिए, या ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स को चलाने के लिए एक विद्युत प्रदान कर सकते हैं, और उसी विद्युत के द्वारा हम उपयोग निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा, RTGs use plutonium 238 which is byproduct of weapon development। प्लूटोनियम मूल रूप से वेपन डेवलपमेंट में उपयोग किया जाता है, नाभिकीय अस्त्रों के उपयोग के जनरेशन में उपयोग किया जाता है, और यहां पर ये प्लूटोनियम आधारित होते हैं। इसलिए इस तरीके के
क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये पूरा करंट अफेयर्स आधारित था और करंट अफेयर्स के बेसिक आधारित क्वेश्चन था। यदि आपने इसको पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान सवाल था। इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3 बी, विच इज करेक्ट, राइट। इसके बाद अगर हम समझे तो अगला क्वेश्चन जो यहां पर आया है ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। खासतौर पर ये हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने वाले सब्सटेंसेस में से होता है और ये सब्सटेंस है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मूल रूप से हमारे शरीर में ही बनता है। उच्च प्रोटीन डाइट के द्वारा भी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है और कुछ अमीनो अम्लों के विखंडन, अमाइनो एसिड के डिग्रेडेशन से भी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है। और एक बार नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में बनता है तो हमारे बॉडी के एपिथेलियम, स्किन एपिथेलियम, उसको अच्छे से मॉड्यूलेट कर सकता है। जिस स्किन एपिथेलियम में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि डायलेट, फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूजफुल होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका सही आंसर होना चाहिए था। ये भी एक आसान सवाल है लेकिन थ्योरी बेस्ड सवाल है, फैक्चुअल सवाल है। यदि पता था तो ठीक है, अदरवाइज इसमें चांस लेने की बात नहीं थी। अगला अगर हम देखेंगे तो पूछा गया है सवाल रडार्स और रडार के उपयोगों पर। रडार रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि रडार एक्टिव और पैसिव तरीके से काम करते हैं। ये रेडियो वेव को एक जगह पर छोड़ते हैं और उसके आसपास उस क्षेत्र में आने वाले या उसकी फील्ड में आने वाले कोई भी ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो या एयरक्राफ्ट्स हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको डिटेक्ट और रेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई अलग अलग प्रकार के रडार भी बनाए गए हैं जो कि वेदर फोरकास्टिंग में भी उपयोग किए जाते हैं। तो मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है रडार्स का। दूसरा, ट्रैकिंग एंड माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। यस, एनिमल्स के माइग्रेशन में खासतौर पर रेडियो कॉलर्स एटसेट्रा यूज किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स इन पैसेंजर्स। कुछ नए प्रकार के रडार हैं 2017-18 ऑनवर्ड्स, जिनके बारे में भी चर्चा हुई। ये ऐसे रडार्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर इसके साथ एक स्पेक्ट्रोमीटर भी जोड़ दिया जाए। तो ये स्पेशली ऐसे रडार्स बनाए गए हैं जो कि एयरक्राफ्ट्स में या एयरपोर्ट्स में किसी तरीके के नार्कोटिक मूवमेंट को, खासतौर पर उन एयरपोर्ट्स में जहां पर नार्कोटिक मूवमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उन सभी एयरपोर्ट्स में इस तरीके के रडार्स उपयोग किए जाते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर बेस्ड रडार्स बन जाते हैं और उपयोग किए जा सकते हैं। इसलिए इस तरीके के सवाल का आंसर होना चाहिए ऑल 3। ये भी एक आसान सवाल है क्योंकि रडार हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खासतौर पर पढ़ते हैं और कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ते हैं। साथ में रडार के विभिन्न उपयोगों के विषय में भी डिटेल में पढ़ा जाना चाहिए जब हम रडार के विषय में पढ़ते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स जो नॉर्मली उपयोग होने वाले हैं उनको याद कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़े से ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। खास तौर पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स पर ध्यान देना चाहिए और उस पर कंफ्यूजन रहा भी है बहुत से स्टूडेंट्स को कई जगहों पर ये अगर हम थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, डिटेल देखेंगे तो ऐसे रडार्स अवेलेबल हैं जो केमिकल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। अब केमिकल्स डिटेक्ट होंगे तो ड्रग्स भी डिटेक्ट होंगी, क्योंकि जब उस रडार के थ्रू कोई भी बॉक्स अगर निकलता है तो वो उस जगह पर जहां पर केमिकल भरा हुआ है या डाउटफुल सब्सटेंस है वो ब्लैंक ग्रीन या ऑरेंज कलर दे देता है, जिससे तुरंत जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है या एयरपोर्ट ऑफिशियल्स हैं वो उसको देखते हैं और चेकिंग करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो 34 का आंसर होना चाहिए सी। अगला सवाल नंबर 35 अगर हम देखेंगे तो ये पूछा गया है 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट्स पर। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का मतलब होता है ऐसे जेट्स जिनमें 4 मेजर क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनके अंदर स्टेल्थ की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेल्थ मतलब जो रेडियो बाईपास कर सके, रडार बाईपास कर सके, एनिमी रडार को बाईपास कर सके, ये होना चाहिए। दूसरा, लो रेंज इंजेक्शन पॉसिबिलिटीज इनके पास होनी चाहिए। लो रेंज या बहुत लो रेंज रडार या बहुत लो डेप्थ या लो ऑल्टीट्यूड रडार है, उससे भी ये बच के आसानी से निकल सकें और आसानी से फ्लाई कर सकें, उसकी एबिलिटी
इनके पास होनी चाहिए, LPIR इनफैक्ट, लो प्रिसीजन इंजेक्टेबल रडार सिस्टम्स, ये इनकी एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी, इनके पास थियोरेटिकल थिएटर कमांड एबिलिटीज होने चाहिए, कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन एबिलिटीज इस तरीके के रडार्स के पास होनी चाहिए। और एक एजाइल फ्रेमवर्क हो जाना चाहिए। एजाइल फ्रेमवर्क का मतलब एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर हो जो हार्ड हो, लाइट हो और साथ में लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सके। और जब लॉन्ग डिस्टेंस में ये फाइटर जेट्स जाएं तो इंजन से निकलने वाली जो ऊष्मा या हीट है उससे उसका फ्रेमवर्क ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो ये 4 मेजर क्वालिटीज 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में होती है। और अभी भारत के पास अवेलेबल फाइटर जेट्स में से चाहे वो रफाल हो, 4.5 जनरेशन है क्योंकि इसकी एजिलिटी हाई है पर LPIR बहुत हाई नहीं है, मनूवरेबिलिटी हाई नहीं है। मनूवरेबिलिटी का मतलब आसानी से ये उड़ सके, मोड़ा जा सके, आसानी से नए रूट्स को ले सके, वो मनूवरेबिलिटी है। वो मनूवरेबिलिटी LPIR से आता है, लो प्रिसीजन इंजेक्टेबल रडार से आता है। चाहे MiG-29 की बात करें तो MiG-29 थोड़े से और पुराने हैं, रफाल 4.5 जनरेशन माना जाता है, MiG-29 4th जनरेशन माना जाता है। तेजस MK1 जो एडवांस है MK1A, इसको 4.5 पे माना जाएगा क्योंकि इसके रडार सिस्टम्स अच्छे हैं। तो अभी भी कोई भी 5th जनरेशन रडार हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। भारत ने सुकोई 57 का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको 5th जनरेशन फाइटर जेट की जैसे क्रिएट करते हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुकोई 57 FGFA प्रोग्राम भारत ने शुरू किया था। HAL और रशिया ने मिलकर के 2018 में भारत बैकआउट कर गया था, पीछे आ गए हम। सुकोई 57 को डेवलप नहीं किया हमने क्योंकि हम एक नया एयरक्राफ्ट खुद ही डेवलप कर रहे हैं M का, जो 5th जनरेशन होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। इनफैक्ट 5.5 जनरेशन होगा। अभी जो अवेलेबल है 5th जनरेशन वो F-35 या F-27 US और चैंग 4A, ये सब चाइना के रडार्स 5th जनरेशन, चाइना के फाइटर जेट्स 5th जनरेशन है। अभी भारत के पास 5th जनरेशन सिस्टम्स नहीं है, तो इसमें से कोई भी इसका जवाब नहीं है। None of the above is the answer for this question. अगला हम समझे क्वेश्चन नंबर 36। तो पूछा गया है हाइड्रोजेल्स के बारे में। अब हाइड्रोजेल्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो करंट में और कंटेम्पररी में रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछा गया और समझा गया। खास तौर पर बायोटेक्नोलॉजी और उसके यूजेस में भी देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजिकल यूजेस में भी हम देखते हैं इसको, हाइड्रोजेल्स को। हाइड्रोजेल्स मूल रूप से ऐसा काम करते हैं जो ड्रग डिलीवरी में उपयोग करते हैं। हाइड्रोजेल का मतलब हुआ एक सॉफ्ट जेल लाइक सब्सटेंस जो कि इंजेक्टेबल भी हो सकता है और आसानी से बनाया जा सकता है। ये ड्रग डिलीवरी में भी उपयोग किए जाते हैं। ड्रग डिलीवरी मतलब दवाओं को साइट स्पेसिफिक भेजने के लिए। ये हाइड्रोजेल्स थर्मल कंडीशनिंग के भी काम करते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर नमी है, मॉइस्चर है, तो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं तो एयर कंडीशनिंग का भी काम आसानी से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए भी। और ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो आसानी से एयर कंडीशनिंग कर सकें, तो मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स बना सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स में भी उनकी ये प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। और जो अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर है तो ये ल्यूब्रिकेंट्स के लिए के तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो हाइड्रोजेल्स तीनों काम कर सकते हैं, 1, 2 and 3। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यदि पढ़ा गया है अच्छे से तो ये आसानी से किया जा सकता है। अगला हम देखें सवाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा गया है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फ्यूल सेल्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम एक कैथोड, एनोड और एक मेम्ब्रेन बनाते हैं। एक तरफ से हाइड्रोजन को भेजा जाता है, मेम्ब्रेन को चार्ज किया जाता है और एनोड को चार्ज किया जाता है। हाइड्रोजन जाती है, मेम्ब्रेन में टूटती है, हाइड्रोजन आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन से बिजली बनती है और हाइड्रोजन आयन के साथ ऑक्सीजन आयन को मिलाया जाता है जिससे वाटर वेपर्स या वाटर का फॉर्मेशन कंडेंस्ड फॉर्म में बनता है जो पूरा मैकेनिज्म बना देता है। तो इसमें इसके आउटकम से वाटर वेपर्स निकलते हैं जो इसके आउटकम है, या इसके एग्जॉस्ट पाइप या इसका इमिशन वाटर वेपर से। इसलिए फ्यूल सेल्स को हम सबसे क्लीन,
सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन मानते हैं, क्योंकि इसके कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कोई एमिशन नहीं है, कोई आउटकम ऐसे नहीं है जो एनवायरमेंट के लिए डिग्रेडिंग। तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। जिन्होंने ट्रेडिशनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी टेक्नोलॉजीज को पढ़ा, उन्होंने फ्यूल सेल्स को पढ़ा होगा और फ्यूल सेल्स के बेसिक मैकेनिज्म को वो जानते होंगे अच्छे से। अगला यदि हम सवाल देखें तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ये खास तौर पर उपयोग किए जाते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में। ये भी एक सिंपल सवाल है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजीज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और उसके साथ उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी हैं जो कि वाटर के सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में खास तौर पर हम वाटर में प्रेजेंट जो भी डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करते हैं या उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो उस डाइजेशन में खास तौर पर एरेशन, फ्लॉक्यूलेशन के साथ साथ बायोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि बैक्टीरिया और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम डिकम्पोज करते हैं या डिग्रेड करते हैं। तो वहां पर मेम्ब्रेन बेस्ड एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड मेम्ब्रेन बना दी जाती है जो कि फ्लोइंग वाटर में लगा दी जाती है, जो कि जल्दी ऑर्गेनिक मैटर के डिग्रेडेशन में हेल्प करती है। खास तौर पर उपयोग होते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, इसलिए ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में प्रेजेंट होते हैं। ये भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि खास तौर पर मूल रूप से एनवायरमेंट, जब आप पढ़ते हैं वाटर कंजर्वेशन की बात जब की जाती है तो वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज में भारत में इस समय पर सीवेज ट्रीटमेंट या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स का फॉर्मेशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में बनाया जाना एक प्रमुख पॉलिसी है। खासतौर पर अगर आप नमामि गंगे की भी बात करेंगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में भी बात करेंगे, तो उसमें भी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया जाना भारत में एक प्रमुख प्रक्रिया मानी गई। उसमें यदि अगर आप समझेंगे तो हमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होते हैं उसके बारे में समझना जरूरी है। जब वो समझेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ट्रीटमेंट भी हम समझेंगे, और जब वो समझेंगे तो हमने ये जरूर पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स कहाँ उपयोग होते हैं। तो ये भी एक सिंपल सवाल है, इस पे भी ज्यादा यदि ये पता था तो ये आसानी से किया जा सकता। अगला यदि हम सवाल देखें तो सवाल पूछा गया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मूल रूप से ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि ऐसे सोर्स से बनाए जाते हैं जहां पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो या एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम हो, और ये ऐसे फ्यूल्स हों जो हम नेट जीरो में उपयोग कर सकें कि यदि अगर हम इसको जला करके कार्बन एमिशन कर भी रहे हैं तो उसके बनाने में हम कार्बन को फिक्स भी कर रहे हैं। तो मूल रूप से बायोफ्यूल्स और उनके बनाए जाने की प्रक्रिया, जैसे कि बायोगैस है अथवा बायोइथेनॉल है अथवा बायोडीजल है, इन सब के बनाए जाने की प्रक्रिया में जो कुछ भी उपयोग हो सकता है वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बना सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कचरा से आप बायोगैस भी बना सकते हैं, बायोइथेनॉल की तरफ भी ले जा सकते हैं। कॉर्न ग्रेन से आप अथवा मक्के के दाने से आप बायोइथेनॉल बना सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, इससे बायोगैस बनाई जा सकती है जो कि बाद में उपयोग की जा सकती है अलग अलग तरीके के फ्यूल्स बनाए जाने में भी। और वुड मिल वेस्ट, इससे भी बायोगैस बनाई जा सकती है। वुड मिल वेस्ट अथवा कास्ट मिल अवशिष्ट, इससे भी बायोगैस बनाई जा सकती है अथवा गैस बनाई जा सकती है जो बाद में अलग प्रकार के तेलों अथवा बायोइथेनॉल के बनाए जाने में उपयोगी हो सकता है। तो ये चारों इसके सोर्स होंगे और इसका आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4, विच शुड बी सी। 1, 3 एंड 4 नहीं, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें डाउट हो सकता था लोगों को इस पर, इसमें डाउट हो सकता था इस पर। ये एक सिलेक्टिव एलिमिनेशन का भी आसानी से सवाल है। यदि आपने बायोफ्यूल के विषय में पढ़ा है तो बायोफ्यूल के सोर्सेस क्या क्या होते हैं उसके विषय में भी आप आसानी से जानते होंगे। और जब आप ये जानते हैं तो एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज और कॉर्न ग्रेन बायोफ्यूल बनाने में उपयोग किए जाते हैं, बायोगैस और बायोइथेनॉल बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तो यहां 1 और 2 तो आपको पता था कि सही है। अब डाउट कहां उठता? 3 और 4 के विषय में भी। 4 पे भी अगर हम देखें तो बायोगैस इससे बन सकती है, प्रोबेबिलिटी है। अब डाउट बचता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज पर, यानी कि 1, 2 एंड 4 का कोई ऑप्शन यूपीएससी ने यहां दिया नहीं था। तो सिलेक्टिव एलिमिनेशन से 1, 2, 3 एंड 4 भी आप आसानी से इस सवाल में लगा सकते थे। यह भी इसमें एक छोटा सा ट्रिक किया जा सकता था वनस्पत, तब जब आपको इन 2 के विषय में पता हो या 3 के विषय में पता हो तो आप आसानी से सही आंसर पर पहुंच सकते थे। अगला सवाल यदि हम देखेंगे तो ये पूछा गया है मेटावर्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस इज मोस्ट। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
an interoperable network of 3D virtual worlds that can access simultaneously by millions of users who can exert property rights and over virtual items. 3D आभासी दुनिया में एक इंटरऑपरेटेबल नेटवर्क जिसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ये मेटावर्स है। अभी हम फेसबुक मेटावर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, अथवा बहुत अलग अलग एप्स को एक साथ वर्चुअल मीडियम बना दिया गया है जिसमें अलग अलग, अब जब हम ये बोलते हैं एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स, मींस हम अपने जितने भी स्पेस को यूज कर रहे हैं मेटावर्स में उस पर हम एक कंट्रोल ला सकते हैं, अपने राइट्स लगा सकते हैं। तो ये आंसर है इसका मेटावर्स। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व किया जाने वाला सवाल है। अगला यदि हम देखेंगे तो ये भी एक इजी क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, अब सिर्फ इतना ही पार्ट है जिसने अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा या थोड़ा बहुत आपको फंसाया होगा, तो इसके अलावा कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन? तो लार्जेस्ट सोर्सेज में अगर हम देखेंगे यहां पर, तो ये सभी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कहे गए हैं, ठीक है। तो खासतौर पर सबसे ज्यादा अब इसमें से भी कौन होगा? तो डी, पावर प्लांट्स, क्योंकि कोल बेस्ड पावर प्लांट सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी एक आसान सवाल है जहां पर सवाल का आंसर होगा डी। अगला यदि हम देखें 92 भी एक ऑल्दो एक फैक्चुअल क्वेश्चन रहा है, ये डिबेटेबल क्वेश्चन भी है, इंटरलिंक क्वेश्चन भी है, इकोनॉमी में भी है, पर दूसरी तरफ क्योंकि इसमें एक GEAC अथवा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पूछ लिया गया तो साइंस और एनवायरमेंट से लिंक हो जाता है। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये गलत है। इंडिया डज इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हाँ, लेकिन हम GM एप्पल्स को इंपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, वो सही बात है, क्योंकि GM एप्पल्स को इंपोर्ट करने के लिए GEAC और उससे एसोसिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के प्रायर अप्रूवल्स की जरूरत है। और अभी GM क्रॉप्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूलिंग के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 टू 2021 रूलिंग्स के अकॉर्डिंग अभी भी GM क्रॉप्स के उपयोग को मार्केट में उपयोग को रोका गया है अथवा फिल्टर आउट किया गया है। अगर हम इसको समझेंगे तो जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं बोल देगी तब तक हम GM फूड्स को यूज नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, राइट। अगला सवाल इसमें पूछा गया और वनस्पत ये इस पूरे सेशन का आखिरी सवाल भी है जो साइंस और एनवायरमेंट से रिलेट करके पूछा गया। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। यस, यूरोपियन पार्लियामेंट नेट जीरो पर लेकर के आए हैं और उन्होंने कमिट किया है कि हम नेट जीरो पर जाएंगे। अब ये नेट जीरो का पूरा कॉन्सेप्ट UNFCCC COP26 से शुरू हुआ था, 28 में भी काफी इसको डिस्कस किया गया और यूरोपियन पार्लियामेंट ने उसी एम्फेसिस को लेकर के अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को लेकर के यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल ने पूरा एक नेट जीरो इंडस्ट्री बनाना है हमको बाय 2050, इसका कमिटमेंट किया है और ऐसी टेक्नोलॉजीज हम बनाएंगे, यूरोपियन यूनियन ने कहा, जो सेल्फ सस्टेनेबल भी होंगी और सेल्फ रिलायबल भी होंगी। तो ऐसी इन चीजों को करने के लिए उन्होंने 2050 अपना बेंचमार्क टाइम रखा है। बिटवीन 2050 टू 2055 उन्होंने कहा है कि हम नेट जीरो चले जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, यूनियन इंटेंड्स टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, ये गलत है। इसमें इट वुड अचीव बाय 2050, ये 2050 तक अपना नेट जीरो पहुंचेंगे, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो एनवायरमेंट और साइंस टेक के सवालों की संख्या कम नहीं हुई है, 25-26 सवाल मिला करके, जो कि लगभग इतने आते रहे हैं 25 से 30, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो एनवायरमेंट एक ऐसा सेक्शन है अथवा साइंस टेक एक ऐसा सेक्शन है जिसने एक बड़ा चंक इस बार भी पीटी के पेपर में सवालों के रूप में देखा है। लेकिन इस बार के सवाल काफी आसान रहे हैं, इस बार के सवाल काफी डायरेक्टेड भी रहे हैं, काफी फैक्चुअल भी रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए भी एक आसानी रही होगी इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। और मुझे लगता है कि आप सभी ने एक अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को किया होगा। हम सभी समझ रहे हैं कि ये एक इजी क्वेश्चन पेपर है, सभी स्टूडेंट्स का भी एक परसेप्शन है कि ये एक इजी पेपर है, पर कई बार
इजी क्वेश्चन पेपर भी हनी ट्रैप हो जाता है, कई बार इजी क्वेश्चन पेपर भी डिबेटेबल हो जाता है, कई बार इजी क्वेश्चन पेपर में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस विषय में आप थोड़ा सा सोचें, आप समझें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में, उत्सुकता में कहीं गलत जवाब तो नहीं दे दिए गए हैं, अथवा ऐसा तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से इसको किया होगा और उतनी तन्मयता से ही किया होगा, और जिसको हम कह रहे हैं कि जल्दबाजी में गलत जवाब हुए होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा और आपने कॉशियसली ये पेपर किया होगा। थैंक यू वेरी मच for your patience and good luck for your next exam.